हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट मौर्य एम्पायर को इन जस्ट अ सिंगल वीडियो। ओके, सो इन जस्ट अ सिंगल वीडियो आपको मौर्य एम्पायर के कम्प्लीटली एमसीक्यूज एंड थ्योरीज वगैरह देखने को मिल जाएगी एंड दैट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि मगध रूलर्स कौन कौन से थे। तो फर्स्ट डायनेस्टी वॉज हर्यंका डायनेस्टी, second one was Shishunaga dynasty, third one was Nanda dynasty. Okay, from the point of view of Mauryan empire, Nanda dynasty is very important for us to know that the last ruler of Nanda dynasty was Dhananand, and Dhananand was killed by Chandragupta Maurya. That's how we all know कि Maurya empire की beginning होती है through the assistance of Chanakya, or we can say Kautilya, or his another name was Vishnugupta. Okay, we will know this. First of all we should know अबाउट हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा एंड सम काइंड ऑफ ओवरव्यू हम लोग थोड़ा ले सकते हैं। तो हरियंका डायनेस्टी बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड उदयभद्र, या वी कैन से उदयन, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र. ओके, वी नो उदयन एज फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र. Second one was Shishunaga dynasty and rulers were Shishunaga and Kalashoka. Next, this is important for us. Nanda dynasty. Founder of Nanda dynasty was Mahapadma Nanda. Okay, and his son Dhanananda was the last ruler of Nanda dynasty. Okay, and we all know Dhanananda was killed by Chandragupta Maurya through the help of his guru, or we can say teacher, Chanakya, Kautilya, or we can say Vishnugupta. Okay, so we all know that ki Chandragupta Maurya raised an army against Dhanananda, and Dhanananda we all know from Nanda dynasty. And Chandragupta Maurya raised an army with the assistance of Chanakya, or we can say Kautilya. And we all know that Kautilya was the author of Arthashastra book. Okay, Arthashastra in English economics we can say. Okay, so ये जो अर्थशास्त्र वाली बुक है इसमें पॉलिटिकल थ्योरीज वगैरह ज़्यादा हैं. So and we all know Chanakya was Chandragupta Maurya's teacher, and he overthrew the Nanda empire in 322 BC. Okay, so that's how we all know that Maurya empire foundation. And as we have already discussed कि नंदा empire का founder कौन था, महापद्मा नंदा. Okay, and Dhanananda was the son of Mahapadma Nanda, and Dhanananda was killed by Chandragupta Maurya. Next, so we will see here Maurya empire rulers, and this will be very sequential, so you have to screenshot, or you can get the PDF of this session. So you have to remember this कि first of all चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं from 322 to 298 BC. Okay, before common era, or we can say before Christian era BC. Next, चंद्रगुप्त मौर्य के son was बिंदुसारा, or we can say अमित्रघात. Okay, अमित्रघात, destroyer of enemies, destroyer of enemies, शत्रुओं का विघ्नकर्ता ऐसे कह सकते हैं, अमित्रघात, बिंदुसारा. ओके, नेक्स्ट थर्ड रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज अशोका, अशोका द ग्रेट, और वी कैन से देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, रूल्ड ओवर फ्रॉम 268 to 232 BC. नेक्स्ट दशरथा. ओके, एंड संप्रीति, फिर शाली शुक्ला, देववर्मन, शतधवन्य, एंड लास्ट वन वॉज बृहद्रथा, लास्ट रूलर. उसने रूल किया था फ्रॉम 187 to 184 BC. एंड बृहद्रथा वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र सुंगा इन 184 BC. ओके, देन वी नो कि आफ्टर मौर्य एम्पायर शुंगा डायनेस्टी रूल करती है. ओके, सो ये जितनी मैंने हाईलाइट की है फ्रॉम रेड पेन एंड ब्लू पेन, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स विच आर हाईलाइटेड बाय मी. Next, so here we will go through MCQs. So first of all, first question is when did Mauryan empire begin? तो मौर्य एम्पायर की शुरुआत कब हुई थी, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत तो 322 BC में हुई थी. ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट एम्परर ऑफ भारत एंड ऑल्सो कॉल्ड अ लिबरेटर. ओके, overthrew the power of Nandas, which Nanda? Dhanananda. Okay, Chandragupta Maurya with the help of his guru, or we can say teacher, Chanakya, killed Nanda dynasty ruler Dhanananda. Okay, at Magad with the assistance of his guru Kautilya. Next,
Chandragupta Maurya won major battles when he was just 20 years old and recaptured the territories from Alexander, or we can say सिकंदर. जो सिकंदर की सेनाएं थी, अलेक्जेंडर ट्रूप्स थी, उससे बहुत सारे टेरिटरीज को चंद्रगुप्त मौर्य ने रिकैप्चर किया था. ओके, लेटर वे सी कि अलेक्जेंडर का एक और गवर्नर या वी कैन से अग्रदूत आता है, तो उसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट हिम लेटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो विशाख दत्ता विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी, वी नो अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य और वी कैन से चाणक्य. ओके, एंड विशाख दत्ता वॉज रिटन बाय, सॉरी, मुद्रा राक्षस book was written by whom? Vishaka Datta. Okay, so in Vishaka Datta we see the system of Mauryan administration which was founded by Chandragupta Maurya. Okay, so next question, what was the imperial palace built by Chandragupta Maurya made of? जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित शाही महल थी वो किस चीज़ की बनी थी? What was the substance or what was made of? So this was made from wood, made up of wood, लकड़ी की बनी हुई थी. Okay, and Chandragupta Maurya was the first emperor of the Maurya Empire, we all know, in ancient India. and इसका जो बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया था इन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी ऑल ओवर इंडिया. ओके, एंड मगध को इन्होंने, मतलब मगध पर इन्होंने जो मौर्यन एम्पायर को अपनी जो फाउंड किया था ये 322 BC में किया था एंड ही reigned from 320 to 298 BC. Okay, so you have to keep remember this time duration of Chandragupta Maurya was from 320 to 298 BC. Okay, let's see next. When did Ashoka invade Kalinga? So Kalinga war was happened in 261 BC. Okay, so option number A will be your correct answer. And we see the most important event of Ashoka's reign was his war, Kalinga war. Modern time हम जानते हैं कि ओडिशा में पड़ता है and the capital of Odisha is Bhubaneswar. Next, ये अशोक है. अशोका was died in 232 BC. Okay, 232 BC में उसकी मृत्यु हो गई थी एंड उसने बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स वगैरह लिखे थे. तो रॉक एडिक्ट नंबर 13 इसमें जिक्र है किसका? इसमें हम देखते हैं इंक्लूजन है या इंक्लूड किया हुआ है अशोका ने जो कलिंगा पर इन्वेड किया था. ओके, अशोका हैड विटनेस्ड द स्लॉटर ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कलिंगा इन हिज रॉक एडिक्ट नंबर 13. ओके, यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस रॉक एडिक्ट नंबर विच इज 13. ओके, रॉक एडिक्ट नंबर वॉज 13 where he mentioned his invasion of Kalinga. Next, according to Buddhist tradition, अशोका जो था उसने 99 भाइयों की हत्या की थी. He killed his 99 brothers and उसने बस एक ब्रदर था उसका तीसा, उसको स्पेयर कर दिया था, उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो वेरी यंगेस्ट वंस था, बहुत ही सबसे छोटा था तीसा. दैट्स वाई ही स्पेयर्ड तीसा, यंगेस्ट वन. एंड अशोका ने खुद को क्राउन किया था, मतलब कि कोरोनेशन कह सकते हैं, राज्याभिषेक हुआ था इन 269 BC एंड ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर उपगुप्ता. ओके, तो उपगुप्ता के इन्फ्लुएंस में आकर उपगुप्ता के द्वारा या उपगुप्ता के थ्रू अशोका ने एक्सेप्ट किया था, इम्ब्रेस किया था बुद्धिज्म को. ओके, नेक्स्ट, अशोका ने अपने सोन महेंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा को श्रीलोन मतलब कि श्रीलंका भेजा था. ओके, एट बुद्धिस्ट मिशनरीज विद द सैपलिंग ऑफ ओरिजिनल पीपल ट्री. जो पीपल ट्री होती है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को नॉलेज मिली थी, तो वहाँ पे उसका एक सैपलिंग मतलब एक छोटा सा हाथ में लेकर ऐसे करके भेजा था अपनी सोन महेंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा को टू सिलोन या श्रीलंका कि आप जाइए, मतलब अपने बच्चों से, अपने जो डॉटर एंड सोन थे उनसे कहा कि आप जाइए और बौद्ध धर्म का क्या करिए, एक्सपैंड करिए इन सिलोन एंड ऑल ओवर इंडिया एंड इन फॉरेन कंट्रीज. ओके, एंड ही इनॉग्रेटेड धम्म यात्रा जो होती थी फ्रॉम बोध गया वेयर बुद्ध भगवान ने जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो वहाँ पे उसने अपॉइंट भी किया था धम्म महामात्र को. और अपनी जो शासन काल है, अपनी जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ हिज रेन, तो बोध गया में जाया करता था वो. ओके, एंड वहाँ पे उसने धम्म महामात्र की अपॉइंटमेंट भी की थी. नेक्स्ट, इन विच स्क्रिप्ट वेयर अशोकाज इंस्क्रिप्शन रिटन. अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी.
ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड देवनागरी वी ऑल नो दैट कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसकी एक स्क्रिप्ट है, लिपि है. देवनागरी इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. एंड अशोका's inscription were written in Brahmi. Okay, so the edicts were first deciphered by archaeologist James Prinsep in 1837. Okay, you have to keep remember this point. It's very important point from the exam point of view कि जो 1837 में जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे इन ब्राह्मी लिपि were deciphered by James Prinsep in 1837. Next, so here we will of his rock edicts and minor edicts and Bhabru. These all edicts were written by अशोका और वी कैन से उसने खुदवाया था. तो माइनर ऑर्डर एडिक्ट्स क्या थे ये देखिए. पर्सनल हिस्ट्री बताते थे ऑफ अशोका एंड समरी ऑफ हिज धम्मा और वी कैन से रिलीजन. ओके, तो माइनर जो ऑर्डर एडिक्ट्स थे तो वो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका बताते थे एंड समरी ऑफ हिज धम्मा. ये लोकेशन देखिए यहाँ पे है, सासाराम बिहार, मास्की आंध्र प्रदेश, भाबरू बैरात राजस्थान एंड रूपनाथा मध्य प्रदेश. ये सारे हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज मास्की विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, भाबरू इन राजस्थान, बैरत. नेक्स्ट देखिए दो कलिंगा रॉक एडिक्ट्स भी हैं. अ न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द कलिंगा वॉर. कलिंगा वॉर में बहुत ज़्यादा उसको देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा लोग मर गए हैं. मेनी पीपल वर डाइड इन कलिंगा वॉर, दैट्स वाई ही स्टार्टेड धम्म. ओके, धम्म सिस्टम. तो वो बुद्धम शरणम गच्छामि, दिस टाइप ऑफ स्लोगन ही गिव आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा बिकॉज ही वॉज वेरी दुखी. वो बहुत दुखी था, ही वॉज वेरी सैड. सो टू कलिंगा रॉक एडिक्ट्स भी हैं. ए न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द कलिंगा वॉर. एंड तोसली में है पूरी उड़ीसा एंड जो गाड़ा है ये गंजम उड़ीसा में. ये दोनों ही कहाँ पे हैं? उड़ीसा में ही है. कलिंगा विच इज़ इन उड़ीसा, दैट्स वाई वी सी द लोकेशन ऑफ हिज टू कलिंगा रॉक एडिक्ट्स इन उड़ीसा. नेक्स्ट भाबरू और बैरत रॉक एडिक्ट्स. तो यहाँ पे अशोका के बुद्धिज्म में कन्वर्जन का यहाँ पे उल्लेख मिलता है. ओके, भाबरू विच इज़ इन राजस्थान. नेक्स्ट यहाँ पे आपको मेन देखा जाए तो मास्की याद रखना है. यू हैव टू कीप रिमेंबर मास्की विच इज़ इन आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट तोसाली विच इज़ इन उड़ीसा. नेक्स्ट भाबरू विच इज़ इन राजस्थान एंड टोपरा विच इज़ इन दिल्ली एंड सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, रुमिनदेई और लुम्बिनी तो ये तराई ऑफ नेपाल. दिस ऑल यू हैव टू कीप रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट Which of the following Mauryan rulers did Seleucus fight against in the Seleucid Mauryan War? तो सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में लड़ाई होती है इन 305 BC. ओके, एंड सेल्यूकस वॉज अ मैसेडोनियन ग्रीक जनरल ऑफिसर एंड सक्सीजर ऑफ अलेक्जेंडर और वी कैन से सिकंदर. सिकंदर का एक सक्सीजर था, उत्तराधिकारी था. मैसेडोनिया का शासक जो मैसेडोनिया रूलर था अलेक्जेंडर, तो उसका एक सक्सीजर था वॉज सेल्यूकस फर्स्ट और सेल्यूकस निकेटर. ओके, एंड सेल्यूकस निकेटर की एक डॉटर थी हेलेना वॉज मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य, लेटर वी सी. ओके, तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं फिर. द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज मेड बाई. ओके, दिस क्वेश्चन हैज़ क्रिएटेड मेनी कन्फ्यूजन आई सी. तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. You all will say that this is the question from Gupta dynasty and why are you including this question in the session of Maurya Empire? Okay, so I am including this question in Maurya Empire because this question has created a lot of confusion. So that's how we can now clear. So this Qutub Minar in Delhi, the iron pillar, you can say this iron pillar stands at Mehroli in Delhi in the Qutub complex. Okay, and this was made by Chandragupta II. Chandragupta II, the ruler of Gupta dynasty. Okay, we will cover this later in another video. Next, Indica, which is an account of Mauryan India, was authored by. Indica पुस्तक का लेखक कौन है? So option number B will be your correct answer, Megasthenes. Indica, a book written by Megasthenes. And Megasthenes was the ambassador of Seleucus Nicator and he stayed almost 5 years in Patliputra. And Patliputra was founded by Udayin from the Haryanka dynasty. Okay,
Next, from this book of Indica, we came to know about Chandragupta Maurya's empire, palace, capital, military organizations, town planning, and also about Indian society. Okay, so this book gave us a lot of information about Mauryan empire and his time duration. Chandragupta Maurya's time duration में क्या क्या हुआ करती थी चीज़ें. Okay, next. Who was known as देवनाम प्रिय प्रियदर्शी? देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोका द ग्रेट. ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. सो अशोका हिमसेल्फ अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ देवनाम प्रियदर्शी. दैट मीन्स देवनाम प्रियदर्शी मतलब कि देवताओं को प्रिय, फेवरेट ऑफ गॉड्स. ओके, फेवरेट ऑफ गॉड वी कैन से देवनाम प्रिय. एंड बिंदुसारा वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसारा वॉज सक्सीडेड बाय अशोका. ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले आते हैं, नेक्स्ट कौन आता है? बिंदुसार आते हैं, नेक्स्ट कौन आता है? अशोका आता है. ओके, सो चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, सेकंड बिंदुसारा एंड थर्ड वन वाज अशोका द ग्रेट. ओके, नेक्स्ट. हु वर स्थानिक स्पेशल ड्यूरिंग मौर्यंस एम्पायर? मौर्य काल में स्थानिक कौन था? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर. Okay, currently we know district magistrate or DM we can say through the exam of IAS. So in Mauryan's empire, Asthanic were called or special district administrator. Okay, and next, Sthanic were the district administrator in Mauryan empire. Provinces were subdivided into districts for purposes of administration and a group of officials worked in each district, and दोज वेर कॉल्ड स्थानिक. ओके, जो डिस्ट्रिक्ट्स में रूल आउट करते थे तो वो स्थानिक कहे जाते थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य जो देखिए ये इंपॉर्टेंट है सारनाथ वाला. यहाँ पे 4 लॉयंस हैं. सांची का जो स्तूप है, सांची स्तूप विच इज़ इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी 4 लॉयंस हैं. सनकिसा है एक प्लेस, तो वहाँ पे है सिंगल एलिफेंट. These questions were asked in exams, so यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लीजिए. सारनाथ में है 4 लॉयंस, सांची में 4 लॉयंस एंड सनकिसा में है सिंगल एलिफेंट. नेक्स्ट देखिए रिलीजन्स बिलीफ ऑफ द मौर्यंस. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था फ्रॉम भद्रबाहु चरित, अकॉर्डिंग टू भद्रबाहु चरित. तो नेक्स्ट है बिंदुसार ने किया था आजीविका जो रिलीजन थी. नेक्स्ट देखिए अशोक को किया था बुद्धिज़्म. अशोक ने अकॉर्डिंग टू कैहन बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा 261 BC. नेक्स्ट देखिए दशरथ, तो आजीविका, संप्रति, जैन. तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है. ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज फॉलोअर ऑफ. तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? तो ये थे जैन धर्म के. ओके, एंड देखिए इस सिस्टम कॉल्ड संलेखना में क्या होता है कि अपनी जो बॉडी होती है उसको बिल्कुल अबैंडन कर देते हैं. यहाँ पे बिल्कुल भूखे प्यासे रह के बिना कुछ खाए, विदाउट ईटिंग, अपनी जो बॉडी है उसको बिल्कुल अप टू डेथ बिल्कुल त्याग देना. तो वो होता है संलेखना, एक सिस्टम होता है. तो ये कर्नाटक चले गए थे, श्रावण बेल गोला वहाँ पे एक प्लेस है. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अकॉर्डिंग टू जैन रिलीजन अपना जो शरीर था, अपनी जो बॉडी थी वहाँ पे त्याग किया था, अपना सेक्रीफाइस किया था. मतलब सेक्रीफाइस नहीं कह सकते हैं, विथ हिज कंसेंट, उसकी जो अपनी इच्छा थी कि वो ऐसे ही मरना चाहते थे. तो वहाँ पे संलेखना को परफॉर्म किया था इन्होंने. एक सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि अपनी जो बॉडी होती है उसको बिल्कुल बिना खाए पिए त्याग दिया जाता है. ओके, इससे जो इंसान होता है, पर्सन होता है, उसकी डेथ हो जाती है थ्रू द सिस्टम ऑफ संलेखना वाइल परफॉर्मिंग दिस. ओके, एंड नाउ कर्नाटका में ये प्लेस है श्रावण बेल गोला, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी. ओके, बाय फास्टिंग. ये जो रिचुअल्स होते हैं, रिलीजन रिचुअल्स होते हैं, पीसफुली वेलकमिंग डेथ बाय फास्टिंग. तो संलेखना सिस्टम में क्या होता है कि जो पीसफुली हम लोग वेलकम करते हैं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने वेलकम किया था डेथ को बाय फास्टिंग, बिल्कुल फास्ट रखते हुए अपने शरीर को त्याग दिया था. नेक्स्ट, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म. तो वह भिक्षु जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने को कहा था, तो ये उपगुप्ता था. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस क्वेश्चन. तो ये देखिए उपगुप्ता था. एंड 3rd सेंचुरी BC में उपगुप्ता एक बौद्धिस्ट मॉन्क था, भिक्षु था. अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज संस्कृत टेक्स्ट अशोक वंदना,
ही वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका। तो अशोका का एक स्पिरिचुअल टीचर था, आध्यात्मिक गुरु था, वॉज उपगुप्ता, हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per Ashoka's inscriptions, which among the following place was declared tax-free and proclaimed only 1/8 part as taxable? तो देखिए, अशोक के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और कर योग्य के रूप में केवल 1/8वां भाग घोषित किया गया? तो ये लुम्बिनी थी। लुम्बिनी अ प्लेस, यहाँ पे भगवान बुद्ध का बर्थ हुआ था। ओके, दैट्स वाई अशोका के जो इंक्रिप्शंस हैं वहाँ पे उसने मेंशन किया है, या इसने ही डिक्लेयर्ड टैक्स फ्री एंड प्रोक्लेम्ड ओनली 1/8 पार्ट ऑफ टैक्स। ओके, तो देखिए, द लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न इन 623 BC इन लुम्बिनी, विच इज द पार्ट ऑफ प्लेन्स ऑफ सदर्न नेपाल। ओके, नेक्स्ट, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, और वी कैन से कौटिल्य, और ऑल्सो वी कैन से हिज अनदर नेम विष्णुगुप्ता। ओके, एंड चाणक्य और वी कैन से कौटिल्य वॉज टीचर और गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। विद हिज असिस्टेंस चंद्रगुप्त मौर्य रेज्ड एन आर्मी अगेंस्ट धनानंदा एंड ऑल्सो ही किल्ड धनानंदा। ओके, सो Kautilya time duration was 350 to 275, an Indian statesman and philosopher, chief advisor and prime minister during the time reign of Indian Emperor Chandragupta Maurya and the first ruler of Mauryan Empire. Okay, next, in which of the following inscriptions Ashoka made his famous declaration, all men are my children? सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं, या सभी ऐसे करके इसके बच्चे हैं। तो in which inscription he concluded it? सो कलिंगा रॉक एडिक्ट था, वहाँ पे कलिंगा रॉक एडिक्ट में अशोका डिक्लेयर दिस फेमस अनाउंसमेंट दैट ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। कलिंगा कहाँ पे है? नाउ इन ओडिशा। एज पर द ऑफिशियल्स मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र, द ड्यूटीज रिलेटेड टू क्राउन लैंड्स वॉज परफॉर्म्ड बाई होम। तो ये जो क्राउन लैंड्स होते थे, मतलब राजभूमि से संबंधित कर्तव्यों का पालन कौन करता था? सीता अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सीता अध्यक्ष ये ड्यूटीज़ को फॉलो करता था, क्राउन लैंड्स की ड्यूटीज़ को। देखिए, महामात्य कौन होते थे? सेक्रेटरीज होते थे। पुरोहित, हु वेर पुरोहित? तो चीफ प्रीस्ट, जो पुजारी होते थे, चीफ प्रीस्ट वेर कॉल्ड पुरोहित्स। And revenue collectors were called Samaharta. Okay, Samaharta were called revenue collectors. Chief priest was called Purohit, and secretaries जो उनको महामात्र्य कहते थे। Okay, महामात्र्यस। Next, the capital of Mauryan Empire was, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये पाटलिपुत्रा थी। And पाटलिपुत्रा, यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था एट पाटलिपुत्रा इन 250 BC। ओके, देखिए ये कुछ है, धम्मचक्र है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, और ये सारनाथ में धमेख स्तूप है उत्तर प्रदेश सारनाथ में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अबाउट अशोक, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट, एडिक्ट्स ऑफ अशोका वॉज फर्स्ट डिसिफर्ड बाई, तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इन 1837। ओके, नेक्स्ट, देखिए मेजर रॉक एडिक्ट्स जो 30 नंबर का था, इसमें मेंशन किया गया है अशोका की जो विजिट होती थी बोध गया में एंड बोधि ट्री के पास। ओके, पीपल होते थे, तो वहाँ पे धर्म यात्रा से जो कांटेक्ट मेंटेन करना होता था वो भी इस एडिक्ट नंबर 30 में मेंशन किया गया है। रॉक एडिक्ट नंबर जो 4 है उसमें प्रेफरेंस ऑफ धम्म घोषा को दिया गया है, साउंड ऑफ पीस, दैट मीन्स साउंड ऑफ पीस ओवर वेरी घोषा। तो वेरी घोषा को साउंड ऑफ वेंड्रम्स, तो इसको न प्रेफरेंस देकर प्रेफरेंस दिया गया है धम्म घोषा को। एंड इम्पैक्ट ऑफ धम्मा ऑन सोसाइटी, तो ये मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 4 में आता है। नेक्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट 1 है, तो ये एनिमल्स के ऊपर जो हिंसा होती है, एनिमल स्लॉटर बैन्स इसको किया गया था। जो फेस्टिवल गैदरिंग्स होती हैं कि एनिमल्स की जो मतलब जो बलि चढ़ाई जाती है, स्लॉटरिंग वगैरह होती है एनिमल्स की, तो वो ख़त्म की जाए, अबॉलिश की जाए। नेक्स्ट, अशोका कन्वेंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा इन, तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 250 BC में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। एंड पाटलिपुत्रा मौर्य एम्पायर की कैपिटल थी। एंड पाटलिपुत्रा वॉज फाउंडेड बाय उदयन। एंड पाटलिपुत्रा मॉडर्न टाइम में पटना को कहते हैं, विच इज़ इन बिहार। ओके, कैपिटल ऑफ बिहार इज़ पटना, एंड एंशियंट टाइम में पाटलिपुत्रा कहते थे।
नेक्स्ट देखिए, दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुई थी। वेन्यू था राजगृह, चेयरमैन थे महाकස්සपा एंड पेट्रॉन किसके टाइम पे हुई थी? अजात शत्रु के बीच, मतलब टाइम ड्यूरेशन में। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में, और ये वेन्यू था वैशाली एंड सभा कामी वॉज चेयरमैन और वी कैन से अध्यक्ष, एंड पेट्रॉन किसके टाइम पे? तो कालाशोका के टाइम रीन में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में हुआ था और वेन्यू था पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र तिस्सा इसके चेयरमैन थे और अशोका के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 72 AD में और ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और इसके जो चेयरमैन थे वसुमित्रा थे और अश्वघोषा, एंड ये कनिष्का के टाइम पे हुआ था। ओके, so this slide is very important. You have to keep remember from the exam point of view. This slide is very important. Next, which of the following rock edicts gives detail about Ashoka's war with Kalinga? तो ये रॉक एडिक्ट नंबर 13 है जो कि ये ऐसा विवरण देती है। नेक्स्ट ये हमने देख लिया है ऑलरेडी, वी हैव सीन दिस। सो हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहद्रथ, and Brihadrath was killed by or assassinated by Pushyamitra Sunga in 184 BCE. Okay, next, now this question is for you. You have to give me the correct answer of this question in comment section. Which dynasty ruled over Magadha after Mauryan Empire? Okay, options are Shunga, Satvahana, Nanda and Kanwa. Thank you so much for watching this. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए।